Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabuana, District Fazilka. And I welcome you all in this channel, Amit Juneja Economics, and in this lecture of the measurement of aggregate demand, aggregate supply, and related concepts in macroeconomics. So in the last lecture, we discussed about the concept of aggregate demand and what are the various components of aggregate demand and how we are able to measure aggregate demand. In the last lecture, we discussed one most important thing, that aggregate demand can never be measured in terms of units, rather it's always measured in terms of money or in monetary terms. Why it can be measured in monetary terms? Because it is not possible for us to add different type of measuring units like the liter or the meter or the ounce or the quintal or the tons and something like that. So we have to convert these like the measuring units into the monetary units. हम उसको convert करना पड़ेगा. Only then we can calculate the level of aggregate demand. So aggregate demand in an economy is a sum total of the monetary expenditures done on various type of goods and services. Why it's monetary expenditure? Because we have to convert the units of measurement in money terms and then we add the different money terms. तो हमने कहा था कि aggregate demand बोलिए कि चाहे आप aggregate expenditure बोलिए, one and the same thing. So aggregate demand is always measured in terms of aggregate expenditure. So we take the help of expenditure method for the calculation of national income in order to measure the level of aggregate demand in an economy. So in the last lecture, we discussed this four sector economy model consists of the household sector and the production sector and the government sector and the rest of world sector with the financial system. So we have these four sector economy model, and on this basis in this lecture we are going to measure the level of aggregate demand. So our topic today is the measurement of aggregate demand, or we can call it the measurement of aggregate expenditure. Okay, so we add different type of demand done by these four sectors. ठीक, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, जितने भी ये सेक्टर्स हैं तो हर एक सेक्टर क्या करता है, जो जिस टाइप की डिमांड करता है. आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स कि हम वी हैव दिस फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, हाउसहोल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर. तो हर एक सेक्टर जिस जिस तरह की डिमांड करता है, we add those various types of demand and get the answer of aggregate demand. So first of all we take the example of household sector. So household sector का काम क्या है, पहले तो ये सोचो. अब household sector क्या कर रहा है, हमने कहा था aggregate demand बोलो कि aggregate expenditure बोलो, तो हाउसहोल्ड का काम क्या है. अब हाउसहोल्ड का काम प्रोडक्शन करना तो है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन तो करेगा प्रोडक्शन सेक्टर. हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है, इफ देयर इज अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, तो हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता, हाउसहोल्ड सेक्टर जो है वो सबसे पहले अपनी जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाता प्रोडक्शन सेक्टर को. हो गया, हाउसहोल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर को दी. इफ देयर इज अ रियल फ्लो, तो क्या होता, जो प्रोडक्शन सेक्टर है वो हाउसहोल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज दे देता. इफ देयर इज अ मॉनेटरी सिस्टम, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को हमने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना है, तो उसमें क्या करते हैं, इफ द हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोवाइड्स इट्स फैक्टर सर्विसेज टू द प्रोडक्शन सेक्टर, तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता, उसके बदले में उसको फैक्टर इनकम देता या फैक्टर पेमेंट देता. अब हाउसहोल्ड सेक्टर के पास फैक्टर इनकम आ गई, प्रोडक्शन सेक्टर जो है उसके पास क्या है, उसके पास गुड्स एंड सर्विसेज है. तो हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता, वो जो फैक्टर इनकम उसके पास आई है वो दे देता प्रोडक्शन सेक्टर को, उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले लेता. तो क्या करता, उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता. तभी हमने कहा था हाउसहोल्ड सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है. सो द consumption expenditure of whom, of the household sector, is our first component of aggregate demand, and we call it private final consumption expenditure. Okay,
So first type of expenditure which is done in an economy is the consumption expenditure, and by whom? It is by the household sector, or we can call it the private sector. अब हाउस होल्ड सेक्टर के हम अंदर हम किसको इंक्लूड करेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे इंडिविजुअल्स, नंबर 2 फैमिलीज, नंबर 3 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बेसिकली एनजीओस कह देते हैं. सो हम उनको इंक्लूड करेंगे क्योंकि अब ये लोग क्या करते हैं, ये सारे के सारे हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट हैं और इनका काम है डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना. सो हाउस होल्ड सेक्टर बेसिकली क्या करता है? कंज्यूम करता है. तो हमने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को नाम दे दिया प्राइवेट सेक्टर और हमने उसका लिख दिया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. पर यहां पे जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है वो कौन सा लेना है? वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है. अब ये फाइनल क्यों लेना है? ये जब मैंने एक्सपेंडिचर मेथड कराया था तब मैंने इस बात को क्लियर कराया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ गुड्स, वन आर द इंटरमीडिएट गुड्स एंड नंबर 2 आर द फाइनल गुड्स. ठीक, सो इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स. अब क्या होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो इंटरमीडिएट गुड्स पे भी होता है, एक्सपेंडिचर जो है वो फाइनल गुड्स पे भी होता है. पर जो इंटरमीडिएट गुड का एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है, वो फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाता है. दैट्स व्हाई वी कैन नेवर मेजर द इंटरमीडिएट गुड्स व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. वी ऑलवेज कंसिडर नेशनल इनकम एज अ सम टोटल ऑफ द फाइनल गुड्स. तो जो आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है वो कौन सा लेना है? वो जो हमने फाइनल गुड्स पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया है वो लेना है. क्यों? क्योंकि अगर हमने एक बार फाइनल गुड्स पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया अगर हमने उसको इंक्लूड कर लिया तो जो इंटरमीडिएट गुड्स का होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो बीच में इंक्लूड हो जाएगा. तो जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमने हाउस होल्ड सेक्टर का लेना है, नंबर 2 वो कौन सा लेना है? वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेना है. मतलब ऐसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो उन्होंने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया था, इंटरमीडिएट पे मत लेना. नंबर 2, अब जो एक्सपेंडिचर लेना है वो कैसे पता लगेगा? बहुत सिंपल, हम ये देखेंगे कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है सबसे पहले तो उसने प्रोडक्शन सेक्टर से कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ली इन द फॉर्म ऑफ रियल फ्लो. ओके, अब वो क्या हो जाएगा, फिर आपको यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की प्रॉब्लम आएगी. फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसने प्रोडक्शन सेक्टर से कितनी कितनी गुड्स एंड सर्विसेज ली, मतलब मिल्क कितना लिया और व्हीट कितना लिया और राइस कितना लिया. बाद में क्या करें, उनके जो अमाउंट ऑफ गुड्स होगा, अमाउंट ऑफ गुड्स को उनके प्राइस के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपको मॉनेटरी टर्म के अंदर जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसका फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो पता लग जाएगा. सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हम क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. अब एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन करता है, वो करता है अपना हाउस होल्ड सेक्टर. तो हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. नंबर 2, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो कौन करता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर करता है. चेक दिस वन, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पढ़ा ना. तो हम यहां पे लिखेंगे, अब क्योंकि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है, तो हम लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्योंकि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता, वो हाउस होल्ड सेक्टर नहीं करता, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है. बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है वो अपने लिए खुद के लिए नहीं करता. द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज डन फॉर द कलेक्टिव purpose of the society because the government is working as a welfare agency. The main purpose of the government is the welfare of the people. So what the government will do, गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो क्या करे, जितने भी लोग हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर उन सभी की जो 5 बेसिक नीड्स है, देयर आर 5 बेसिक नीड्स ऑफ अ पर्सन. कौन कौन सी? फूड, शेल्टर, क्लोथ, एजुकेशन एंड हेल्थ.
सो गवर्नमेंट क्या करे, ये 5 बेसिक नीड जो हैं वो सब लोगों की पूरी कराए। तब उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है वो प्रोडक्शन सेक्टर से क्या करेगी, ये गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज किया, लाइक अब मान लीजिए एक फार्मर है, अब फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया, फार्मर ने जो है वो राइस प्रोड्यूस किया, फार्मर ने वेजिटेबल्स प्रोड्यूस की। तो गवर्नमेंट ने क्या करना, अब देखो वो फार्मर है, वो क्या कर रहा है, चीजों को प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो कौन सा सेक्टर हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर। गवर्नमेंट ने क्या किया, वीट राइस परचेज कर लिए। कैसे, जब हर साल जब वीट आता है, जब राइस आता है, तो क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो अपना वीट राइस लेके जो है वो ग्रेन मार्केट के अंदर आते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं लाइक एफसीआई, फूड एंड सिविल सर्विस, फूड एंड सप्लाई कॉर्पोरेशन और एफसीआई, ये सारी जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड एंड सिविल सप्लाई, उनको भेज के जो है वो क्या करती हैं, उससे जितने भी वीट हैं, जितना भी राइस है, उनसे वो परचेज कर लेती है। अब हु आर द फार्मर्स, दे आर द प्रोड्यूसर्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनसे उनका वीट राइस परचेज कर लिया। अब नाउ वीट एंड राइस आर कंज्यूमर गुड्स, तो वी कंज्यूम वीट एंड राइस ना, दैट्स व्हाई दे आर कंज्यूमर गुड्स। तो गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन सेक्टर से कंज्यूमर गुड्स परचेज की और उसके बदले में गवर्नमेंट सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। पर जो गवर्नमेंट ने ये कंज्यूमर गुड्स परचेज की, दैट इज नॉट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट बट फॉर द कलेक्टिव कंजम्पशन ऑफ द सोसाइटी। अब गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने जितना भी वीट परचेज किया, जितना भी राइस परचेज किया, गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने जो अमाउंट ऑफ वीट एंड राइस है उसको सबसे पहले तो थ्रू द पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मींस राशन शॉप्स, उनके ऊपर दे देना है, ताकि ऐसे सारे लोग जिनके राशन कार्ड बने हुए हैं या जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, उनको ये चीजें जो है वो फ्री में दे सकें, सो दैट दे आर एबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। और क्या करना है, गवर्नमेंट ने ये जो क्रॉप्स हैं इनको जो है वो आगे स्कूल्स में दे देना है, सो दैट दे कैन प्रोवाइड मिड डे मील टू स्टूडेंट्स। सो उसको क्या करना है, अपने जो फोर्सेज हैं, बीएसएफ, आर्मी, उनको दे देना है, सो दैट दे कैन फेड दोज मिलिट्री पीपल, उनके लिए वो हो जाएगा। या सपोज कीजिए कहीं पे कोई फ्लड्स आ जाते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट एज ए हेल्प ये सारा जो बफर स्टॉक गवर्नमेंट ने अपने पास रखा होता है वीट और राइस का, तो वो वहां पे दे देती है। तो गवर्नमेंट का पर्पस जो है, इन सारी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है उसको गवर्नमेंट अपने पे नहीं करती, गवर्नमेंट जो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है वो सोसाइटी के लिए करती है, सो दैट ऑल दो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हु आर इन डायर नीड ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, हम उनकी वो जो बेसिक नीड्स हैं कम से कम उसको पूरा कर सकें और उनको जो पॉवर्टी लाइन है उससे ऊपर जो है वो कर सके। तो क्या होगा, अब सेकंड जो एक्सपेंडिचर होगा इकोनॉमी के अंदर वो कौन करेगा, वो गवर्नमेंट सेक्टर करेगा in the form of consumption. Okay, so this is called the consumption expenditure by whom, by the government। और same case जो हमने consumption expenditure लेना है वो कौन सा लेना है, वो लेना है हमने final consumption expenditure, the consumption expenditure which is done by the government sector on the final goods and services, not on the intermediate goods and services। नंबर 3, अब देखो गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन हो गया, इधर हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन हो गया, दो सेक्टर तो निकल गए। अब आते हैं हम प्रोडक्शन सेक्टर पे। अब ये नाउ इज द थर्ड सेक्टर। अब जो प्रोडक्शन सेक्टर है, अब प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोड्यूसर का काम है प्रोडक्शन करना, ठीक। अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अब प्रोडक्शन करने के लिए उसको कंजम्पशन नहीं करनी पड़ेगी। ध्यान से सोचिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर को क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोडक्शन करने के लिए एक प्रोड्यूसर को कंजम्पशन करनी पड़ेगी, नो, द प्रोड्यूसर हैज टू मेक इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोडक्शन। अब सोचो कि प्रोडक्शन करनी है, तो प्रोडक्शन करने के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको काम पे लगाना पड़ेगा। अब क्या क्या लगाना पड़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, फैक्टर्स एंड नॉन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम पे लगाने पड़ेंगे, इनके बदले में इन पे पैसे लगाना पड़ेगा। उसके बाद बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, इक्विपमेंट्स लाने पड़ेंगे, तो इनके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे। अब जो पैसा लगाया वो क्या होगा, वो होगा इन्वेस्टमेंट। सो अब जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है वो भी एक्सपेंडिचर करेगा, बट नॉट ऑन कंजम्पशन बट ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो अब जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर ये क्या करते हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, वैसे ही जो हमारा प्रोडक्शन सेक्टर है वो क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैंने एक आपको बात समझाई थी कि अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखें या आप कैपिटल फॉर्मेशन लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट आर synonyms. Why they are synonyms? Capital formation, what is capital? Capital means capital goods. Capital goods means machines. तो क्या होगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन द क्रिएशन। अब क्या, अगर आप सोचो कि अब आपकी एक, सपोज करो कि कंपनी, बिकॉज हम जो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ले रहे हैं, हम किसका ले रहे हैं, हम ले रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर का। तो प्रोडक्शन सेक्टर क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा ना, तो उसके लिए मान लो उसकी कंपनी है जहां पे वो प्रोडक्शन कर रहा है। अब क्या हुआ, उसकी कंपनी में एट प्रेजेंट सपोज कीजिए कि 10 मशीन जो है वो लगी हुई है। एक मशीन जो है 100 गुड्स प्रोड्यूस करती है पर डे। तो 10 मशीन्स काम कर रही हैं, एक मशीन जो है पर डे 100 गुड प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दैट प्रोड्यूसर इज 1000 गुड्स। ठीक, और जो एक मशीन है, सपोज लेट इट बी ऑफ वैल्यू 1 लाख रुपी, तो उसने क्या किया, 7 लाख रुपीज और लगा दिए, तो उसने 7 न्यू मशीन्स लेके आया। अब टोटल मशीन्स हो गई 17। One machine's production capacity is 100 goods. Now the total production capacity is 1700 goods. हो गई, अब एक दिन में 1700 goods बन रही हैं। पहले कितनी बन रही थी, 1000, अभी बन रही है 17। क्यों, क्योंकि पहले मशीन्स थी 10, अभी है 17। तो उसने क्या किया, उसने अपने यहां पर 7 मशीन्स और लाया। उसके लिए एक मशीन 1 लाख रुपए की है, तो इसका मतलब उसने 7 लाख लगाए। तो अब उसने अगर 7 लाख रुपीस लगाए, तो रिजल्ट ये निकला कि 7 लाख रुपीस की कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन्स क्या हुई, क्रिएट हुई। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब जितने पैसे हम लगाते हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब जितनी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, अब इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, वो करेगा प्रोडक्शन सेक्टर। तो जितनी इन्वेस्टमेंट वो करेगा, उतनी ही न्यू कैपिटल गुड्स जो हैं वो क्रिएट होंगी। दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन आर कंसिडर्ड एज द सिनोनिम्स। तो अब हमने ऐड करना है प्रोडक्शन सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विच इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि कई बार क्या होता है कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वो आपको सीधा सीधा नहीं गिवन होता, आपको गिवन होता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि पहले 10 मशीन लगी हुई थी, अभी 17 लगी हुई है, तो कितने का चेंज आया, 7 का। तो उसके लिए कितने पैसे लगाए, 7 लाख। तो दैट इज नेट। नेट मींस द नेट चेंज इन द कैपिटल गुड्स। सो पहले कैपिटल गुड्स थी 10 मशीन थी ना, अभी कितनी हो गई 17। तो कितने का नेट चेंज आया, 7 का। तो 7 मशीन्स कितने की, 7 लाख रुपीस की। दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर मैं कहूं कि वो जो प्रोड्यूसर है उसने टोटल जो है वो 10 लाख लगाए थे, अब आप सोचोगे सर कि अगर 10 लाख लगाए थे, मशीन तो 7 आई, तो बाकी 3 लाख कहां गए। मैं बोलूंगा बाकी के जो 3 लाख हैं वो गए जो ऑलरेडी 7 जो है 10 मशीन्स लगी हुई थी उनको रिपेयर कराने के अंदर। व्हाट इज दैट, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको समझाया था, जब आपको नेट गिवन हो और आपने ग्रॉस बनाना हो तो आप क्या करेंगे, नेट के अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब सोच के देखिए कि जो एक प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर करता है, क्या वो सिर्फ न्यू गुड्स पे करता है? अगर खाली न्यू गुड्स पे करता है, दैट इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन।
पर वो क्या करता है, जो एक्सपेंडिचर करता है वो सिर्फ न्यू मशीन्स पे नहीं करता, वो जो एक्सपेंडिचर करता है वो जो ऑलरेडी मशीन्स काम कर रही हैं उनकी रिपेयर पे भी करता है। हमने उसका सारा एक्सपेंडिचर लेना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। अगर वो पुरानी मशीन्स को ठीक कराता है, अब मान लो उसका कोई पार्ट टूट गया, अब उसको भी तो मार्केट से परचेज करेगा ना, उसके ऊपर भी तो एक्सपेंडिचर करेगा ना, उसकी भी तो डिमांड करेगा ना। अब ये थोड़ी कि सिर्फ नई मशीन्स की हम डिमांड करते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पे मान लो फ्रिज खराब हो गया, अब ये थोड़ी कि आप सीधा जाकर नया फ्रिज परचेज कर लाएंगे। कई बार ये होता है कि फ्रिज का जो पार्ट खराब होता है, हम उस पार्ट की भी तो डिमांड करते हैं, उस पार्ट के ऊपर भी तो एक्सपेंडिचर करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नया फ्रिज थोड़ी खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उस फ्रिज को रिपेयर करा रहे हैं। सो हम रिपेयर गुड्स की भी डिमांड करते हैं। तो क्या होगा, अगर आपको सिर्फ न्यू गुड्स की डिमांड दी गई है विच इज नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अब आप क्या करेंगे, उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन गुड्स की डिमांड है और उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है उसको भी बीच में लेके चलेंगे। सो नाउ इट्स बिकम्स नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि इसमें एक और भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, कई बार आपको क्या करेगा, यहां पर ना आपको देगा ग्रॉस ही, आपको यहां पे लिखा होगा ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, पर साथ में ना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं लिखा होगा, यहां पे लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द production sector or the expenditure of the production sector or the demand of the production sector on what, on the fixed assets of production or the fixed machines, जो फिक्स्ड है, फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर। पर सोच के देखो कि जो प्रोड्यूसर है, क्या जो अपना वो एक्सपेंडिचर करता है, क्या वो सिर्फ मशीन पे करता है। मेरे पास सपोज करो कि 10 लाख रुपीस थे, मैंने क्या किया, 10 लाख रुपीस की मशीन खरीद ली, ठीक है, 1 लाख रुपी इज द प्राइस ऑफ एवरी मशीन। सो मैंने 10 मशीन परचेज की और मैंने कहा कि लो जी मैंने 10 लाख रुपीस का जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कर दिया, बात खत्म। अब क्या हुआ, अब मैं सोच के देखो वो जो मशीन्स मैं लेके आया हूं, मैं उन मशीन का करूंगा क्या। अब उन मशीन्स का मेरा मेन पर्पस जो था वो तो ये था कि मैं उन मशीन से प्रोडक्शन कराऊं। अब प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, उसके लिए तो मैंने पैसे ही नहीं रखे। मेरे पास टोटल 10 लाख रुपए थे, मैंने 10 के 10 लाख रुपए जो हैं वो मशीन्स पे लगा दिए। अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, अब लेबर को हायर करने के लिए पैसे ही नहीं है, अब लैंड को रेंट पे करने के लिए पैसे ही नहीं है, जो कैपिटल लिया उसको देने के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है, एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट का अता पता ही नहीं है, क्योंकि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगी तो प्रॉफिट कहां से होएगा। एक प्रोड्यूसर जो है वो जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर करता है वो सिर्फ फिक्स्ड गुड्स पे नहीं करता बल्कि चीजों को प्रोड्यूस करने पर भी करता है। और जब वो चीजों को प्रोड्यूस करेगा तो क्या होगा, अब उसके पास जो भी अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगी उनके स्टॉक के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। Now it's clear? So मैंने आपको समझाया था ये चीज कि अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो तो आप क्या करेंगे, साथ के अंदर जो चेंज इन स्टॉक है आप उसको प्लस करेंगे। और चेंज इन स्टॉक किसके बराबर होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले अपने लेक्चर्स के अंदर कि चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका चेंज इन स्टॉक जो है वो हो जाएगा। यानी अब तक हम जो एक्सपेंडिचर की बात कर चुके हैं वो कौन किसकी कर चुके हैं, हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर कर लिया, गवर्नमेंट सेक्टर ने एक्सपेंडिचर कर लिया, प्रोडक्शन सेक्टर ने एक्सपेंडिचर कर लिया। अब कौन सा बचा, अब बचा हमारा फोर्थ सेक्टर विच इज द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर। अब रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर जो है वो भी क्या करता है, वो भी एक्सपेंडिचर करता है। अब जो वो एक्सपेंडिचर करेगा वो किस पे करेगा, वो या तो करेगा एक्सपोर्ट पे या करेगा इंपोर्ट पे। तो अगर तो एक्सपोर्ट पे करेगा, अब सोचो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एक्सपोर्ट होंगे, ध्यान से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से एक्सपोर्ट होंगे मतलब दूसरे हमें एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या होंगे, इंपोर्ट। और अगर हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारे तो एक्सपोर्ट है पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के क्या है, इंपोर्ट है।
अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हमसे चीजें परचेज करता है, मतलब हम करेंगे एक्सपोर्ट तो मतलब उसके होंगे इंपोर्ट, तो वो क्या करेगा, उसके बदले में हमें पेमेंट करेगा, तो एक्सपेंडिचर करेगा। अगर वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज भेज रहा है, इसका मतलब उसके एक्सपोर्ट है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट। अब हम इंपोर्ट करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, तो हम दोनों का नेट देख लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब हम अगर क्या करें, अब अगर हम इन चार चीजों को प्लस कर दें, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, नंबर टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर थ्री ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बाय द प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक एंड नेट एक्सपोर्ट। तो इसका अगर हम टोटल करें तो जो टोटल का आंसर आता है, मैंने आपको समझाया था कि आप क्या करिए, आप एक बेस तैयार कर लीजिएगा एंड दैट बेस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, एट मार्केट प्राइस। सो दिस विल बी आवर बेस। अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर जो है इन चार चीजों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ध्यान से सोचिए, अब ये जो बना वो एक्सपेंडिचर मेथड में ही बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि पहला वर्ड अगर हम चेक करें तो वो क्या है, वो ग्रॉस है। ग्रॉस जब भी एक्सपेंडिचर होता है वो हमेशा ग्रॉस टर्म्स में ही होता है, वो कभी नेट टर्म्स में नहीं होता। क्यों, चेक कीजिए पॉइंट नंबर 3, यहां पे हमने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लिया था। मैंने आपको स्पेशली एक चीज बोली थी कि अगर यहां पे आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हो, आपने नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड नहीं करना है, आपने नेट में डेप्रिसिएशन ले लेना, तो ग्रॉस बनेगा। मतलब हम यहां पे ग्रॉस ले रहे हैं तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगा, ग्रॉस। अब सोचो, क्या मैंने इसमें ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज डन बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, क्या मैंने इसको लिया, नहीं लिया ना, मैंने सिर्फ चार चीजें ली हैं। मैंने इसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया हाउस होल्ड सेक्टर का, मैंने गवर्नमेंट सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लिया, मैंने प्रोडक्शन सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर या कैपिटल फॉर्मेशन लिया, और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर का जो मैंने एक्सचेंज दिखाया वो मैंने सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर के साथ दिखाया, मैंने हाउस होल्ड सेक्टर के साथ नहीं दिखाया। तो मैंने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं लिया। इसका मतलब अगर इसको नहीं लिया, इसका मतलब जो बचेगा वो क्या बचेगा, मैं बात कर रहा हूं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर। सो जो भी आंसर आएगा वो आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर। नंबर 3, क्योंकि हम एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर किस में आएगा, वो आएगा मार्केट प्राइस के ऊपर आएगा। सो अल्टीमेट, क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमने किसी भी चीज पे एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, मैंने आपको पहले में क्या बताया था, मैंने आपको ये कहा था कि इफ वी वांट टू मेजर एग्रीगेट डिमांड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई द यूनिट्स ऑफ डिमांड विद देयर प्राइस, है ना, क्योंकि हम यूनिट्स को ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम यूनिट्स को उनके मार्केट प्राइस के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सोचो, प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना यूनिट्स को, तो प्राइस कहां पे होता है, प्राइस तो मार्केट में होता है, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा मार्केट प्राइस। तो इसका मतलब अब अगर हमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन फ्रेम होती है वो कौन सी होगी। अब वो जो इक्वेशन है वो कैसी है, मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर वो इक्वेशन कराता हूं। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बोले या हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोले, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। दैट इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक। सो नाउ व्हाट इज दिस, AD is aggregate demand, okay. C here is private final consumption expenditure, ठीक है। Now it's I is investment, so we call it gross domestic capital formation.
अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ने प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्यों नहीं लिखा, है ना? तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको हटाने वाला हूं यहां से, तो मैं इसको हटा देता हूं। अब क्या हो गया? नाउ इट्स अ टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, जिसके अंदर क्या है, सिर्फ दो ही सेक्टर हैं। पहला कौन सा? हाउस होल्ड, जो क्या करेगा? कंजम्पशन करेगा। नंबर टू कौन सा बचा? प्रोडक्शन सेक्टर, जो क्या करेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम बीच में एक जी सेक्टर ले आते हैं। जी मींस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट आई तो अब क्या आएगा? अब आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट आएगी तो वो भी अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगी। अब क्या हुआ, जब तक मैंने जी नहीं लिया था बीच में, मैं सिर्फ मान के चल रहा था कि इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक प्रोडक्शन सेक्टर है। देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड। क्लोज्ड मतलब कोई इंपोर्ट नहीं है, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, अब हमने क्या किया, अब हम बीच में जी ले आए। जी कौन लेके आया था? जी सबसे पहले लेके आया था केन्स। वो कहता है विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस आपकी इकोनॉमी कभी भी इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकती। अभी हम अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में यही बात करने वाले हैं, जब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। उसमें हम केन्सियन व्यू भी देखेंगे, हम क्लासिकल व्यू भी देखेंगे। केन्स कहता है कि बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के इकोनॉमी के अंदर कभी इक्विलिब्रियम्स नहीं आते। ये बात हमने डिस्कस की थी अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन के अंदर। तो हम जी ले आए। अब इकोनॉमी कितनी हो गई? थ्री सेक्टर इकोनॉमी। फिर हमने कहा कि नहीं जी ना, बिल्कुल भी नहीं, इकोनॉमी क्लोज्ड तो होती नहीं है। आजकल की तो सारी इकोनॉमीज ओपन है, मतलब इंपोर्ट भी होते हैं, एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा? अब x माइनस एम लाना पड़ेगा। हियर x मींस द एक्सपोर्ट एंड m, सॉरी इट्स m मींस द इंपोर्ट। ओके, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने लिखा x माइनस m। सो व्हाट इज x माइनस m मींस? इट इज नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो नेट एक्सपोर्ट हाउ कैन वी कैलकुलेट इट? x is in the plus terms and m is in the negative terms. So हम क्या करेंगे, जो एक्सपोर्ट होंगे क्योंकि उसके बदले में हमें इनकम मिलने वाली है, हम प्लस करेंगे। इंपोर्ट के बदले में हमारे पैसे आउट ऑफ द कंट्री जाने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एडी जो एग्रीगेट डिमांड है इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, वो किसके बराबर होगी? सी आई जी एक्स माइनस एम। अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या होगा? हम एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कर सकते हैं या हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो क्या है? वो सिनोनिम्स हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन मेजर द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन फोर सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। अगर आपने टू सेक्टर में करनी हो तो क्या करिएगा? सिर्फ सी और आई ले लीजिएगा, बाकी ये लोन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थ्री सेक्टर में करनी है तो सी आई और जी ले लीजिएगा। फोर में लेनी है तो सी आई जी एक्स और एम आ जाएंगे, पर उसमें एक्स जो है यानी कि एक्सपोर्ट, उनको प्लस में लीजिएगा और जो इंपोर्ट है उसको माइनस में लीजिएगा। सो ऐसे हम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ today's lecture. In the next lecture we discuss about the concept of aggregate supply. जैसे हमने यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड की बात की थी, वहां पर हम बात करेंगे एग्रीगेट सप्लाई की। क्यों? क्योंकि माइक्रो के अंदर हम ये कहते हैं कि जो माइक्रो में एक मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है? जब डिमांड और सप्लाई बराबर होता है। माइक्रो में हम बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की, तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करते हैं? डिमांड सप्लाई को कट करा देते हैं, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब हमने जो इक्विलिब्रियम ढूंढना है वो हमने ढूंढना है पूरी की पूरी इकोनॉमी में। तो पूरी की पूरी इकोनॉमी में कब इक्विलिब्रियम आएगा? जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे। माइक्रो में क्या होता है? हम डिमांड और सप्लाई को बराबर करते हैं। मैक्रो में क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर करते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि एग्रीगेट डिमांड कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई को कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट supply. So till then it's goodbye from my side. Thank you very much. Please do like the channel and share it as much as you can. Thank you very much.